Hello everyone, I welcome you all in today's class. So, as we have finished one question or the first question of 8.3, I would like to complete this exercise 8.3. Fine. And before completing this, I just hope this कि आपको जो है complementary angle से concept समझ आया है ना? And if not, then you can give me the doubts और जो भी आपके पास questions हैं जहाँ भी आपको नहीं समझ आ रहा है आप वहाँ पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So I'm beginning with question second of exercise 8.3. Question second, first part. Okay? It is this is the question, and I'm writing second part also. Cos 38 degree, cos 52 degree, minus sin 38 degree, and sin 52 degree equals to 0. These are two parts of the question second. Okay. Let's see the first part. So as I already told you yesterday कि आपको वो चेक करना है जिनका सम 90 है ना. पहले आप वो एंगल्स चेक करें जिनका सम 90 हो रहा है. तो यहाँ देखो 48 42, okay, both combines to form 90 degree. 27 and 23 and 67 both combines to form a complementary angle. So that's why if you change any of these two, है ना, इनमें से कोई भी any one of these two, कोई भी एक आप चेंज कर दें, आप 1042 को चेंज कर दें, आप 1048 को चेंज कर दें. I am changing here 1048. Okay, so 1048 can be written as 90 degree minus 42 degree. Okay, then 1023. Okay, I am changing 23, so it will be 90 degree minus 67 degree. Okay, LHS लिख लेते हैं, LHS we have taken. Fine. And now what remain? Then we have 1042 degree, and along with this we have 1067 degree. Now further 1090 minus theta becomes cos theta, so it will cot theta, so it will be a cot 42 degree. And as you can see already we have 1042 degree. Then here 1090 minus theta become cot theta, so cot 67 degree and 1067 degree. Now see cot theta into tan theta. Okay, as we have this relation that cot theta it is reciprocal of tan theta. Okay, so here we can write at the place of cot theta we can write 1 upon 1042 theta. Here also at the place of cot 67 we can write 1 upon 1067. तो ये क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे. Okay, as these are reciprocal of each other these will get cancelled. और नहीं कैंसिल करना है आपको तो एक हम लिख देते हैं कैसे ये कैंसिल होगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा. इट विल बी 1 upon 1042 degree into 1042 degree. This could be written as 1 upon 1067 degree into 1067 degree, and numerator denominators cancel, 1 into 1 into 1 into 1, so simultaneously answer will be 1, which is our RHS. Okay, so this is how we verified. If you check the LHS part, solve the LHS part, and as I told you yesterday कि आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये कि आप जो एंगल कन्वर्ट कर रहे हैं साथ में आप जो है साइन
जो आप चेंज कर रहे हैं, सॉरी मीन्स आपका रेशियो जो चेंज कर रहे हैं वो एट ए टाइम एक साथ मत कीजिए, ठीक है, वन बाय वन प्रोसेस कीजिए। पहले आप या तो एंगल कन्वर्ट करें, ठीक है, उसके बाद जो है आप हमारा रेशियो कन्वर्ट करें, ठीक है। दोनों एक साथ करने से जो है बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक कर जाते हैं। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। Your second part is taking LHS first of all. So it will be cos 32. Okay. Now wait. यहाँ जरा ध्यान से देखो आप। As we know, cos and sin both are complementary to each other. Fine. तो आप चाहो तो कोई भी एक जो है कन्वर्ट कर लो, आप चाहो तो सारे cos जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दो, या आप चाहो तो सारे जो है sin ट्रांसफॉर्म कर दो, या फिर आप चाहो तो यहाँ से एक cos ट्रांसफॉर्म कर दो, यहाँ से एक sin ट्रांसफॉर्म कर दो, ठीक है। वो जो भी आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री सिंबल आपको मिल रहा है, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो पेयर आपको मिल रहा है, वो आप एक कोई भी जो है चेंज कर दो, ठीक है। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि आप ऐसा करो, पूरे कॉस चेंज कर दो, ठीक है, पूरे कॉस मीन्स ये पूरा पार्ट ही आप चेंज कर दो। नहीं चाह रहे तो आप ये चेंज कर दो, एक यहाँ चेंज कर दो, ठीक है। मतलब इस तरीके से चेंज करना है आपको कि कैंसिल हो जाए, ठीक, क्योंकि आपको यह दिख रहा होगा ना RHS में जीरो आ रहा है। जीरो कब आएगा? जब ये दोनों ही सेम होंगे ना, 1 - 1 होगा तभी ना जीरो होगा, ठीक है। मतलब ये आपस में ही कैंसिल हो, वही वैल्यू जब माइनस होगी तभी तो जीरो आने वाला है। तो यहाँ हम ऐसा करते हैं, आई एम जस्ट कन्वर्टिंग ऑल द कॉस ratios, okay, so cos 38 into cos 52, I'm going to write cos 90 minus, अब देखो 38, ठीक है, 38 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 52, फाइन, ओवर हियर cos 90 minus 38, that's it, minus sin 38 degree into sin 52 degree. Next, now cos 90 minus theta equals to sin theta. Similarly, cos 90 minus theta equals to sin theta. ये आपके पास हो गया sin 52 into sin 38 degree minus same thing sin 38 degree and sin 52 degree. Same thing it is. It will get subtracted and answer will be 0, which is our RHS. Fine. So in this manner we can solve the RHS and LHS part of the complementary angles. Now its application, मतलब इनका हम जो है इस तरीके से डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे, कुछ एप्लीकेशन हमारे पास होगा जो कि हम यूज करेंगे। देखिए आप क्वेश्चन थर्ड में, क्वेश्चन थर्ड आपका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनसे यही आपको मोस्ट प्रॉब्ली एग्जाम्स में मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड इज if tan 2a, I'm writing theta over here. Third, if tan 2 theta is equals to cot theta minus 18, okay, where theta और 2a है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, कंडीशन है where 2 थीटा और 2a इज एनी एक्यूट एंगल, हमको थीटा जो है वो फाइंड आउट करना है। कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा ना, हमने आपको ए की जगह पर थीटा वर्ड यूज किया था, तो ये हमको कंडीशन दी हुई है यहाँ, है ना, और हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट यूज करना और हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है, जो ए आपको दिया हुआ है ए की वैल्यू फाइंड आउट करना कर लेंगे, ठीक है। इसको लिखते हैं, इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये है tan थीटा, ठीक है। अब 2 थीटा लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही हमारा एंगल, आपको वो पूरा एंगल लेके चलना है। तो ये हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, यहां समझना है ना, ये पूरा थीटा है, ये पूरा ही थीटा है, 2 लगाए 3 लगाए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। tan के अलावा जो भी है वो आपका एंगल है, तो वो आपको पूरा एंगल लेके चलना है। तो ये आपका tan थीटा, अब tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, वही लिखा हमने, cot थीटा माइनस 18 डिग्री। नाउ cot कैंसिल,
we will have 90 degree minus 2 theta equals to theta minus 18 degree. Further transformation can be done, so it will be 90 plus 18 degree equals to 3 theta, या फिर लिख दे तो 2 theta plus theta, okay, and it will be 108 degree equals to 3 theta, and theta equals to, you can cancel this, 36 degree. Fine. As the condition given है ना, यहाँ पर हमको एक कंडीशन भी दी हुई है कि 2 थीटा या 2a इज एनी एक्यूट एंगल, ये कोई एक्यूट एंगल है, तो आप यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 36, इसका जस्ट डबल करेंगे तो कितना होगा 72, तो 72 लेस देन 90, दैट मीन्स एन एक्यूट एंगल. फाइन. द नेक्स्ट क्वेश्चन 4. गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन है आपके पास tan A equals to cot B, tan A equals to cot B. फाइन. टू प्रूव आपको करना है a प्लस बी इक्वल्स टू 90, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, ये क्वेश्चन है. गिवन इज tan A equals to tan A equals to cot B, and we need to prove that A plus B equals to 90 degree. No problem, we will take given first of all, है ना, proof लेके चले. तो tan A equals to cot B. Further, tan A can be written as cot 90 minus A, isn't it? समझ पा रहे हैं. और इसको हम थीटा बोले तो tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा, है ना, तो थीटा की जगह हमारे पास a है, तो tan A इक्वल्स टू होगा cot 90 माइनस a. cot फर्दर कैंसिल, we will have 90 degree minus a equals to b, and further if it transpose, so it will be a plus b equals to 90 degree. तो वेरी सिंपल इट इज. सिंपल थिंग इज कि आपको सिर्फ कंसेप्ट यूज करना है, कंसेप्ट आप यूज करें और फर्दर सॉल्व करें. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन 5. और 5th आई कैन गिव यू इन होमवर्क, इट इज जस्ट लाइक योर क्वेश्चन 3rd. आपका जो क्वेश्चन 3rd है वो क्वेश्चन 5th के जैसा ही है. ठीक है, सो इट्स एन होमवर्क फॉर यू. राइट डाउन होमवर्क क्वेश्चन 5th. कम टू क्वेश्चन 6. इट्स इंपॉर्टेंट, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा जरा सा डिफरेंट है, लेकिन वही कंसेप्ट है. इफ ABC आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, देन शो दैट. ओके, इंटीरियर एंगल्स बोल रहा है. इंटीरियर एंगल्स मीन्स वही एंगल्स जो हम अभी लेके चलते हैं ना, कोई नई बात नहीं है. इंटीरियर मीन्स एंगल्स फॉर्मिंग इनसाइड. ओके, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. ABC आर द सिंपल एंगल्स ऑफ एनी ऑफ द ट्राइंगल ABC. हमें प्रूफ करना है. दिस इज योर 6th क्वेश्चन. वी नीड टू प्रूव साइन B plus C by 2 equals to cos A by 2. ये हमको प्रूफ करना. छोटा सा फिगर बनाते हैं फिलहाल, है ना. A B C ये हमारा ट्राइंगल है, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, अब A B C हमारे पास हो गए, कोई भी जो है एंगल्स हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए. तो यहां पर अगर हम प्रॉपर्टी यूज करें ना, बाय यूजिंग एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी
of a triangle. Okay, so by using angle sum property of a triangle, we have, what do we have? Angle A plus angle B plus angle C equals to 180 डिग्री. आई होप यू नो दिस, है ना, पता होना भी चाहिए 10th में भी आप, कि जो सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स और ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180. दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. फाइन. अभी क्या करना है, देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो क्या हो रहा है. हमको ए अलग चाहिए, बी एंड सी अलग चाहिए. ठीक है, कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम ए को वहां ट्रांसपोज कर रहे हैं, बी एंड सी आई एम टेकिंग ओवर हियर. दिस इंप्लाइज B angle B plus angle C equals to 180 degree minus angle A. Okay. Now doing half both side. ठीक है, या dividing by 2 both side. आप दोनों साइड अगर डिवाइड कर दें, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल C डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 180 बाय 2. ठीक है, या फिर चलो पूरा लिख लेते हैं, 180 माइनस एंगल ए बाय 2. ये हो गया, इतना समझ आ गया. इसके बाद देखिए, ठीक है, अब हम दोनों साइड साइन ले रहे हैं. ठीक है, साइन हम जो है दोनों साइड जो है साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ये आपके पास आ जाएगा साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल्स टू साइन. ठीक है, ब्रैकेट में देखो डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये होगा 90 डिग्री माइनस ए बाय 2. समझ आ रहा है. तो ये देखो ये क्या हुआ, साइन 90 माइनस थीटा. अब थीटा हमने बोला ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 2 थीटा हो सकता है, थीटा बाय 2 हो सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो साइन 90 माइनस थीटा बिकम्स कॉस थीटा. तो नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा साइन एंगल बी प्लस एंगल सी बाय 2 इक्वल्स टू कॉस एंगल ए बाय 2 एंड इट इज ट्रू. ठीक है, ये आपका ट्रू. फाइन, सिंपल नहीं है. फर्स्ट वी विल यूज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, फर्दर ट्रांसपोज करें, यहाँ डिवाइड बाय 2 करें, यूज साइन बोथ साइड, साइन को दोनों साइड यूज करेंगे. तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो कंसेप्ट लगाएंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट लगाने के बाद आपके पास जो फाइनल प्रूफ चाहिए वो आ जाएगा. लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 7. ये जो आपको क्वेश्चन 7th है, ये मोस्ट प्रॉब्ली 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है. ठीक है, एक्सप्रेस एनी ऑफ द जो है आपको रेशियो दिए होंगे और उनको हमें कोई भी कंडीशन दी होती है, इसमें कन्वर्ट करना होता है. जैसे इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री into the angles between 0 degree to 0 and 45 degree. ये हमें कंडीशन दी हुई है कि हमें साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को चेंज करना है. थीटा जो है वो 0 से 45 के बीच में होना चाहिए. अभी देखो 67 मोर देन 45, 75 मोर देन 45, तो इनको हमें कन्वर्ट करना है और वो सिर्फ 0 से 45 के बीच के रेंज में ही होना चाहिए. ओके, सो वी विल चेंज दिस साइन. 67 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 23, isn't it? ठीक है, हाँ, into given angle between 0 to 45. ठीक है, तो साइन 67 हमने लिखा, साइन 90 माइनस 23 डिग्री. इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15 डिग्री. ओके, फर्दर अब आप ट्रांसपोज कर दें, आई मीन चेंज कर दें इसको. ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 23 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा विल बी साइन 15 degree, and this will be your answer. You can check theta 23
and 15 lies between 0 and 45. ठीक है, ये आपका आंसर हो गया. सो इट्स वेरी सिंपल, होल एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल. Only one question I have given you in homework, that is question number 5. So I request you all to complete the exercise. Okay, and if you have any doubt, you can ask me. That's enough for today. Thank you so much.